I invite Professor Imran Ashar Saab. Sir, please come on the stage and say some words. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی تمام وہ بچے جو آج الحمدللہ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں ان بچوں کو اور ان کے والدین کو بہت مبارکباد. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جیسے یہاں پہ پرنسپل صاحبہ جو ہیں وہ بچوں کی اچیومنٹس پہ کلیپنگ کروا رہی تھیں تو میرا دل ہے کہ ہم سارے مل کے ہمارے ان بچوں کے جو ٹیچرز ہیں جو پرنسپل ہیں جو باقی سٹاف ہیں ان کے لیے ہم ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ کریں کیونکہ یہ ساری ایفرٹ پورا سال یہ ہمارے ان سٹاف ممبرز کی ہوتی ہے ہمارے بچوں کے ٹیچرز کی ہوتی ہے اور وہی ایفرٹ جو ہے وہ آج ہمیں سٹیج پہ نظر آ رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ پرفارمنسز کی شکل میں. اور اس کے بعد ہمارے بچوں کی جو اکیڈمک اچیومنٹس ہیں وہ ہمارے ان اساتذہ کی مرہون منت ہوتی ہیں. تو بہت شکریہ جی تمام سٹاف ممبرز کا بھی. آخر میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہمارے جو آج کے میزبان ہیں وہ بھی ڈیوٹی لگا گئے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. آج کے اس دور میں نا ہمارے اکثر جو پیرنٹس ہیں چونکہ میرا تعلق کالج سے ہے یہاں پہ ساتھ ہی آئلم کالج ہے شہباز پور روڈ پہ, ہم وہاں پہ فیل کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں اسپیشلی بوائز اور گھروں پہ بیٹھ کے بھی ہم اپنے بچوں کے بارے میں جو کنسرن ہے جس فکر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت. اس وقت میرا نہیں خیال کہ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی پیرنٹس ایسے ہوں گے کہ جو بیٹھ کے فیملی گیدرنگ میں یا دوستوں کے ساتھ والد بیٹھتے ہوں گے یا مائیں بیٹھتی ہیں اپنی فیملی میں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی جی اس وقت جو بچے ہیں جی ان کی تربیت کا بڑا شدید فقدان ہے. تو یاد رکھیں آج بنیادی طور پہ ہم اس چیز کا اس خدشے کا اظہار تو کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 سالوں میں ہم جب اپنے بچے کی سٹڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے جب کسی اسکول کا انتخاب کریں گے تو ہم وہاں پہ جا کے اس چیز کا ضرور پوچھیں گے جی کہ آپ کے اسکول میں بچوں کی تربیت سازی کردار سازی پہ کیا کام ہوتا ہے. ورنہ یاد رکھیں آج سے 8-10 سال پہلے اور آج 2024 ابھی تک ہمارا جو کنسرن ہے نا بچوں کے انسٹیٹیوٹ کی سلیکشن کے حوالے سے ہمارا کنسرن ہوتا ہے جی ہمارے بچوں کا جی رزلٹ کیسا آئے گا, کیا ہمارے بچوں کو انگلش بولنا آ جائے گی, آپ اپنے ذرا مجھے جی کلاس رومز دکھائیں جی ٹیچرز سے ملوائیں. ماؤں کی سلیکشن ہوتی ہے جی کہ جس اسکول میں ٹیچر جو ہیں وہ ذرا تھوڑی ماڈرن لک دے رہی ہوں جی ہم نے تو جی اپنا جو پی جی کا بچہ ہے نا اس ٹیچر کے حوالے کرنا ہے. تو یاد رکھیے جو چیز ہم مانگتے ہیں ہمیں وہی ملتی ہے. آج اور آج سے 10 سال پہلے سے ہم نے ایک چیز شروع کر لی تھی بطور والدین کہ جی جس اسکول میں بچوں کے نمبر یا جس کالج میں بچوں کے نمبر 1000 میں سے 900 اور 950 اور 975 آئیں گے ہم نے بچہ وہیں پہ داخل کروانا ہے. اور جو چیز ہم مانگتے تھے وہ ہمیں ملی بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ملی. ہم نے نمبر مانگے تھے ہمیں نمبر ملنا شروع ہو گئے. لیکن اس وقت شدید فقدان ہے ہمارے بچوں کی تربیت میں اور ان کی کردار سازی میں بڑی جو ہے نا وہ کمی محسوس کر رہے ہیں ہم بطور اساتذہ اور آپ بطور والدین. تو آج میرا خیال ہے کہ اس اینول ڈے کے حوالے سے آپ تمام والدین تھوڑا سا اس چیز پہ کوشش کر لیں کہ نیکسٹ 2024 اور 2025 والا جو سیشن ہے اس میں ہم نے اپنے بچوں کی ٹیچرز اپنے بچوں کی اسکول مینجمنٹ ان سے ہم نے نا نمبر نہیں مانگنے, ان سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کردار سازی پہ اور تربیت پہ کیا کام ہوا ہے. اور یاد رکھیے کردار سازی اور تربیت پہ جو سب سے پہلا کام ہے نا وہ ہم نے گھر پہ کرنا ہے. یہ مت سوچئے کہ اسکول کرے گا,
स्कूल का नंबर बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले हमने घर पे ये काबिज शुरू करनी है। तो आज मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे बच्चों के वालिदैन बैठे हुए हैं, माएँ बैठी हुई हैं, ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत, याद रखें किरदार साजी पे। हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हमें सिर्फ थोड़ी सी अपनी अटेंशन इस चीज की तरफ करनी है। हमें टेंशन होना शुरू हो गई है, और जिस चीज की टेंशन शुरू हो जाए वालिदैन की अटेंशन उस पर आ जाती है, और हमें अटेंशन किस चीज पे देनी है। मैं फिर 3-4 चीजें जो मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि अगर हम उन पे कोशिश शुरू कर दें तो किरदार साजी और तरबियत पे काम शुरू हो जाएगा। उसमें जी सबसे पहले मेरा जाती ख्याल है कि बच्चे को सच बोलना चाहिए। और अगर आप ये कहेंगे ना कि बच्चे को जी कि बेटा सच बोलो, तो शायद वो ना बोले। ये जो सच बोलने वाला काम है खुदारा, ये हमने खुद करना है, हमने करके दिखाना है अपने बच्चों को कि सच कैसे बोलना है, बतौरे वालिद, बतौरे वालिदा और बतौरे टीचर। हम तीनों ने सच बोलने उसके सामने, तो फिर वो सच बोलेगा। और याद रखें, सच जो है इसमें निजात है, और झूठ जो है इसमें हलाकत है। ये हमने बच्चे के सामने परफॉर्म करना है। हमने बच्चे को बताना है कि बेटा आप सच बोलोगे, या मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त बाहर आता है, नॉक करता है, मेरा नहीं मिलने को दिल कर रहा, तो मैं अपने बच्चे से ये कह दूं बेटा जाके कह दो जी कि बाबा घर पे नहीं है, तो झूठ तो हमने सिखाना शुरू कर दिया घर से। बात समझ गए? करना ये है कि हमने खुद अपने बच्चों के सामने सच बोलना है, वो खुद ही बोलना शुरू हो जाएगा। और अगर कभी कभार बच्चे से कोई बड़ा ब्लंडर हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर आपका बच्चा, याद रखें, आपको आके सच सच बता देता है कि मामा या बाबा मेरे से ये नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई है, मेरे को क्लास टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, उस पे आप उसको अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट उसने आके सच तो बोला। जिस दिन हमने सच पे उसको अप्रिसिएशन देनी शुरू कर देनी है, वो सच बोलना शुरू कर देगा। और अगर उसे ये पता चले कि सच बोलूंगा, इस नुकसान का बताऊंगा, और घर जाके डांट पड़ेगी, माँ से मार पड़ेगी, तो यकीन करें ऐसा ऐसा झूठ बोलना शुरू कर देगा। दूसरी जो चीज हमने करनी है, वो इस वक्त जिस चीज पे फोकस करना है, वो है कि बच्चे को बाअदब होना चाहिए। बच्चा बाअदब होगा तो फिर वो जो तरबियत वाला मामला है ना, वो हम जिस पे हम आजकल लाना है, वो हमें खुद बहुत बेहतर होता नजर आ जाएगा। लेकिन इस पे भी आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि बेटा बड़ों का अदब करना है। इसमें ना असातिज़ा और वालिदैन दोनों ने काम करना है। बाअदब बानसीब, वालिदैन इस चीज पे फोकस करें कि उनका बच्चा उनके पढ़ाने वाले टीचर्स का अदब करे। और बच्चे ने तब अदब करना है जब माँ ने और बाप ने अपने बच्चों के जो उस्ताद है ना, उनका अदब करना है। अगर आप अपने बच्चों के सामने टीचर्स के हवाले से, स्कूल के हवाले से कोई हार्ड वर्ड्स, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिए एक वक्त आएगा कि आपका बच्चा भी अपने टीचर के बारे में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ही करेगा। और सेम इसी तरह से जो उस्ताद हैं, वो ये मतलब मैं अगर किसी से कहूंगा ना कि बेटा मैं आपका उस्ताद हूं, मेरा अदब करूं, नहीं करेगा। असातिज़ा का काम है कि वो बच्चों से कहें कि बेटे घर पे माँ बाप का अदब करना है, रिस्पेक्ट करनी है। और याद रखें, घर पे दादी दादा और बड़े बुजुर्ग या और फैमिली मेंबर्स मौजूद होते हैं, अगर वालिदैन उनके बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने बच्चों के सामने, तो एक वक्त आएगा कि आपका बच्चा सबसे पहले तो अपने उस रिलेटिव के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा। लेकिन मत भूलिए वो ठीक 4-5 साल के बाद आपके साथ भी उन्हीं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करेगा। तो ये हमने खुद करके दिखाना है, सच बोलना, बाअदब होना, और उसके बाद बच्चों को आपने सिखानी है। तीसरी चीज वो है कि बेटा जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो बतौर उस्ताद और बतौर वालिदैन हमने अपने बच्चे को बताना है कि बेटा मेहनत में ही अजमत है, शॉर्टकट कोई नहीं है किसी चीज का, याद रखिए। ये हमने अपने बच्चों को बताना है। ये जो आज हमारे गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और ये जो हमारा सारा एरिया है ना झेलम तक, हम डंकियां लगा रहे हैं और अपने बच्चों को बड़े शॉर्टकट तरीके से यूरोप भेजना शुरू हो गए हुए हैं। ये शॉर्टकट वे है।
और उसी शॉर्टकट वे में हर साल हम सुनते हैं 500 लोगों की कश्ती डूब गई, 400 इस कौम का जवान बच्चा जो है ना वो डूब के मर गया। या क्लास में पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है जी, जब ये आजकल जैसे कि 10th के एग्जाम हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम है, तो हम सबसे पहले स्कूल इंतजामिया से टोको करते हैं कि जी सेंटर पे कोई मिल मिला लेना था इंतजामिया से। ये शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। ये चीज पहले दिन से बच्चों को बतानी है। और आखिरी चीज है जी शेयरिंग और केयरिंग। अगर आपका बच्चे में कुर्बानी का जज्बा है, मुआफ कर देने का जज्बा है, अपनी चीजें दूसरे बच्चों के साथ मिल बांट के खाने खेलने का जज्बा है, तो याद रखिए आपका बच्चा जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। तो यही 3-4 चीजें हैं, इन पे काम करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से ये हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें कम से कम इस चीज की तरफ जो है ना वो परेशान होना नहीं चाहिए था, तरबियत की तरफ, लेकिन बदकिस्मती से हम हो चुके हैं। और इसका अब हल भी, इसका तदारक जो है ना इस मसले का, वो भी हमने ही करना है। इस पे काम करने की जरूरत है। बहरहाल जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आए हैं वो जरूर आने थे, नंबर चाहिए, नंबर आते हैं, जब मेहनत करता है उसके उतने ज्यादा नंबर आते हैं, लेकिन इसमें मसला नहीं है। अगर आपका बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, वो बाअदब है, वो तहजीब याफ्ता है, तो यकीन कीजिए कि वो आने वाले दिनों में जब वो जिंदगी की भाग दौड़ खुद संभालने के काबिल होगा, वो बहुत आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। वमा अलैहि।